اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں، کراچی معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہے، ایسا بتانا ہے ریسکیو ذرائع کا۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہے، ایسا بتانا ہے ریسکیو ذرائع کا۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے اور ابھی شناخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 افراد اس گاڑی میں سوار تھے، ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی معروف قوال امجد صابری کی تھی جس پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہوا ہے۔ کراچی سے خبر دے رہے ہیں کہ جہاں پر معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، دوسرا زخمی ہے۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک آپ کو یہ بتائیں کہ ابتدائی اطلاعات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ہی افراد گاڑی میں موجود تھے جب فائرنگ کی گئی۔ جی ہاں، معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر آج یہ فائرنگ کی گئی ہے، اب سے کچھ دیر قبل یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، شدید زخمی ہے دوسرا شخص بھی۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے۔ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے جبکہ دوسرا جاں بر نہیں ہو سکا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو چکا ہے جبکہ زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر معروف قوال امجد صابری فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے کہ معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ گاڑی میں 2 افراد موجود تھے اور ابتدائی اطلاعات میں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ معروف قوال امجد صابری شدید زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے اطلاعات میں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے کہ معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ جی ہاں، ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ معروف قوال امجد صابری فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لیاقت آباد میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، معروف قوال امجد صابری جاں بحق ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے اور جاں بحق ہونے والے بھی امجد صابری خود ہی ہے جبکہ ان کے ساتھ ایک شخص جو تھا وہ زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ معروف قوال امجد صابری پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اظہر زیدی سے۔ اظہر زیدی، سب سے پہلے تصدیق کیجئے گا، بتائیے گا کیا امجد صابری پر فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہوئے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ سے قبل جو ہے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب پیش آیا ہے جہاں پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے کار پر فائرنگ کی ہے۔ کار جو ہے امجد صابری کی بتائی جا رہی ہے جبکہ کار کے اندر امجد صابری خود بھی موجود تھے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے اسپتال ذرائع کا کہ 2 افراد جو ہے شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے تھے، جب باقی شہید اسپتال لائے گئے تھے جہاں پر جو ہے امجد صابری جو ہے ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ اظہر زیدی آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ یہاں آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ معروف قوال امجد صابری پر ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے اور ابتدائی اطلاعات میں ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، امجد صابری کو 3 گولیاں لگی ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے 3 گولیاں لگی ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے، نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، معروف قوال امجد صابری جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ اطلاعات سامنے آئی ہے۔ امجد صابری کو 3 گولیاں لگی ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، امجد صابری معروف قوال وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ گولیاں ان کو 3 لگی جس سے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اظہر زیدی سے۔ اظہر زیدی، بتائیے گا معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اب سے
कुछ देर ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर कबल जो है लियाकताबाद 10 नंबर के करीब पेश आया, जहां पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने कार पर फायरिंग की है। ये कार जो है मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की है और अमजद साबरी जो है इस कार के अंदर मौजूद थे। इस फायरिंग के नतीजे में जो है 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे, जिसमें एक जो है अमजद साबरी खुद थे और उनके साथ जो है दूसरा शख्स जख्मी हुआ था, जिन्हें दोनों अफराद को जो है जख्मी हालत में, शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर जो है एक शख्स की हलाकत जो है वो हो गई है। अस्पताल जराये से हमने मालूम किया तो अस्पताल जराये का ये कहना है, अब्बासी शहीद अस्पताल जराये का ये कहना है कि अमजद मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि दूसरा शख्स जो जख्मी हुआ था वो इस वक्त शदीद जख्मी हालत में है और उसको जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि अमजद साबरी जो है जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए हैं। जी अजहर जैदी, ये बताएगा अस्पताल जराये की जानिब से ये तस्दीक की जा रही है कि अमजद साबरी ही जाँ बहक होने वाले शख्स हैं? जी बिल्कुल, अब्बासी शहीद अस्पताल जराये का ये कहना है और उसके अस्पताल जराये की ये तस्दीक कर रहे हैं कि अमजद साबरी मारूफ कव्वाल जो अमजद साबरी है वो इस वाक़े में जो है जाँ बहक हो गए और दूसरा शख्स जो है इस वाक़े में शदीद जख्मी है, जिसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी अजहर जैदी, ये भी बताइएगा क्या कहना है पुलिस हुक्काम का? कुछ बताया जा रहा है कि फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, टारगेट किस इलाके में बनाया गया, इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो है चहबकुआ का जो है घेरा कर लिया है और चहबकुआ से जो है शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है चहबकुआ पर पहुंच गई है। इस वक्त भी जो है पुलिस के आला अफसरान जो है वो चहबकुआ पर आ रहे हैं और अस्पताल भी पहुंचना शुरू हो गए, जबकि चहबकुआ से जो है शवाहिद जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। जी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अजहर जैदी, ये भी बताएगा जो दूसरा शख्स इनके साथ गाड़ी में सवार था जो शदीद जख्मी हुआ है, उसके बारे में कुछ बताया जा सका है? क्या वो इनका कोई फैमिली मेंबर था या कोई फ्रेंड था? जी बिल्कुल, इस बारे में हमने जो है अस्पताल जराये से भी बात की और पुलिस से भी हमारी जो है वो बात हुई, तो उनका यही कहना है कि उसके जो दूसरा शख्स जख्मी हुआ है उसकी शनाख्त अभी नहीं हो सकी है और ये कहना कबल वक्त होगा कि आया कि वो जो जख्मी शख्स है वो अमजद साबरी के कोई करीबी अजीज है या उनके कोई दोस्त है, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। जी ठीक है अजहर जैदी, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। कराची से आपको खबर दे रहे हैं मारूफ कव्वाल अमजद साबरी फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। अस्पताल जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गाड़ी पर फायरिंग लियाकताबाद के इलाके में की गई है। 2 शख्स गाड़ी में सवार थे, एक शदीद जख्मी हुआ, जबकि अमजद साबरी जाँ बहक हो चुके हैं। अस्पताल जराये की जानिब से ये कंफर्मेशन की गई है। मारूफ कव्वाल और मारूफ नाथ खान अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की गई है और इसके नतीजे में अमजद साबरी जाँ बहक हो गए हैं। 2 अफराद गाड़ी में मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग की गई है। लियाकताबाद के इलाके में इनकी गाड़ी पर यह फायरिंग की गई है। कराची के इलाके लियाकताबाद में मारूफ कव्वाल मारूफ नाथ खान अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2 अफराद इस गाड़ी में मौजूद थे, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि इन दोनों अफराद में एक अमजद साबरी भी मौजूद थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। नुमाइंदा वक्त न्यूज कासिम रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। कासिम, बताइएगा, ये तो तस्दीक कर दी गई है कि जाँ बहक होने वाले शख्स अमजद साबरी ही थे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबरी साहब बहुत जबरदस्त कव्वाल फरीद गुलाम फरीद सारी साहब के साहबजादे थे और उनकी वफात के बाद उन्होंने बेड़ा उठाया कि इस कव्वाली के फन को वो बामे उरूज तक ले जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने जितनी भी कव्वालियां गुलाम फरीद साबरी साहब ने पढ़ी थी उन सबको उन्होंने दोबारा एनर्जी दी और एक नए तरीके से ताजदार हरम सुनाई, एक नई तरीके से उन्होंने भरदे जोली सुनाई और लोगों के दिल मोह लिए। बागो बहार तबीयत के इंसान थे, आपको हर टेलीविजन शो में नजर आते थे, इंतहाई दोस्त थे और अपने घर पे दावतें भी किया करते थे दोस्तों की। हम खुद उनके घर जा चुके कई दफा और ये एक ऐसे इंसान थे कि ऐसा खिला है जो शायद अब पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अपने वालिद का नाम इतना मशहूर करना किसी एक आम आदमी की बात नहीं, बस की बात नहीं है। जी अच्छा कासिम रजा, अभी आज उनकी जाँ बहक होने की तलात सामने आई, कितनी उम्र थी उनकी, उनकी फैमिली के बारे में भी बताइएगा।
کہ بالکل ظاہری بات ہے کہ بالکل ینگ تھے, اپنے 40s میں تھے, لیکن ان کی جو وائف ہے ان کے ساتھ ان کی لو میرج ہوئی تھی. ان سے ہماری ایک دفعہ گفتگو کی تو انہوں نے بڑے مزے کا قصہ سنایا تھا مرحوم نے کہ ہماری جب شادی ہو رہی تھی تو ہماری مخالفت ہوئی تھوڑی سی, لیکن پھر جب ہم نے ان کو اصرار کیا تو شادی ہو گئی. پھر ہماری بیوی نے ہماری ماں کا دل موہ لیا, اور جب اب ہماری اماں ریٹائر ہو گئی ہے اور بیوی جو پورا گھر سنبھالتی ہے. بہت بڑی بات تھی. بہنوں اور بھائیوں سے محبت کرنے والے تھے, اپنے سازندوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کئی کئی گھنٹے ریاض کرتے تھے, جس کا کئی دفعہ آپ نے پروگرام کو دیکھا کہ ان کی تان کس طرح اوپر جاتی تھی. جی ٹھیک ہے قاسم رضا, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ان کی زندگی کے بارے میں. آپ کا بہت شکریہ. اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ معروف قوال امجد صابری فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اسپتال ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی اور امجد صابری کو کئی گولیاں لگی ہیں. اسپتال ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے 3 گولیاں لگی ہیں ان کو, جس سے وہ جاں بحق نہیں ہو گئے. اندھی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں امجد صابری اور وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا. امجد صابری غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے. وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. کراچی سے معروف قوال معروف نات خان امجد صابری فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے. امجد صابری کو کئی گولیاں لگی, ایسا بتانا ہے اسپتال ذرائع کا. فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا. امجد صابری غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے اور بہت ہی کم عمری میں اپنے والد صاحب کا نام بھی روشن کیا اور بہت ساری قوالیاں گائی اور ایک نئی طرز بھی دی, نئی دھن بھی دی اس حوالے سے, اور ایک اپنا نام بنایا بہت کم عرصے میں. اور ایک ملنسار شخصیت تھی اور بہت ہی ہنستی مسکراتی شخصیت, جس کو آج کراچی شہر میں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, اس دنیا میں نہیں ہوں گے. امجد صابری جن کی گاڑی کو آج نشانہ بنایا گیا ہے. افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. 2 افراد موجود تھے. ابتدائی اطلاعات میں ایسا بتایا جا رہا تھا کہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص جاں بحق ہوئے ان کا نام امجد صابری ہے. جی ہاں, ان کے چاہنے والے تمام جو ان کے مداح ہیں ان کے لیے یہ انتہائی افسوسناک اور بری خبر ہے کہ امجد صابری اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اسپتال ذرائع کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ جاں بحق ہونے والا شخص امجد صابری ہی ہے, جسے اسپتال تو منتقل کیا لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکے, وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ بھی شدید زخمی ہے, جو اندھی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں. ٹارگٹ کیا گیا ہے. آج امجد صابری کی گاڑی کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں, جس سے امجد صابری فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. معروف قوال امجد صابری فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اسپتال ذرائع کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے. گاڑی پر فائرنگ لیاقت آباد کے علاقے میں کی گئی ہے. امجد صابری کو کئی گولیاں لگی. اسپتال ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہے, جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ابھی جاری ہے, مگر اس کی شناخت کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں بتایا گیا. امجد صابری غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے. وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں, جہاں گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. معروف قوال امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. 2 افراد سوار تھے اس گاڑی میں. نامعلوم افراد کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے اور دونوں افراد کو ہی گولیاں لگی ہیں اور امجد صابری کو 3 گولیاں لگی مگر وہ جاں بحق نہیں ہو سکے. انہیں اسپتال تو منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اسپتال ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس علاقے میں ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہ امجد صابری کی گاڑی ہے جس گاڑی میں وہ سوار تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص سوار تھے. اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ گاڑی آپ اس وقت نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. گاڑی کے جو سکرین ہے وہاں پر نشان موجود ہیں, اس وقت گولیوں کے نشان موجود ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ گاڑی ہے جس میں معروف قوال معروف نات خان امجد صابری موجود تھے, سوار تھے. اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے, گولیوں کے نشانات موجود ہیں اس گاڑی پر, اور یہ گاڑی لیاقت آباد کے علاقے میں اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
जी हाँ, ये गाड़ी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के ऊपर गोलियों के निशानात हैं। अंधाधुंध फायर खोले गए हैं इस गाड़ी पर। इस गाड़ी में सवार थे अमजद साबरी और उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद थे जो अस्पताल में अब भी जेर इलाज है। मगर अमजद साबरी जिनको 3 गोलियां लगी हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये गाड़ी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस पर फायर खोले गए, अंधाधुंध फायरिंग की गई। लियाकताबाद के इलाके में इस गाड़ी पर फायरिंग की गई है और इस गाड़ी पर गोलियों के निशान वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अमजद साबरी इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं, ये कंफर्मेशन कर दी गई है अस्पताल जराए की जानिब से। अमजद साबरी की गाड़ी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गाड़ी को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया गया जिसमें सवार थे अमजद साबरी जो जाँ बहक हो चुके हैं। नामालूम अफराद की जानिब से इस गाड़ी पर अंधाधुंध फायर किए गए और गोलियों के निशानात भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ी के फ्रंट पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं और इन गोलियों के लगने से अमजद साबरी जाँ बहक हो चुके हैं। जो उनके साथ सवार थे वो भी शदीद जख्मी हैं। अस्पताल जराए की जानिब से कंफर्मेशन कर दी गई है कि अमजद साबरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके चाहने वालों के लिए, उनके मद्दाहों के लिए इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई बुरी खबर है कि अमजद साबरी अब जाँ बहक हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपने कलाम के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम देने वाली एक और आवाज को आज शहर कायद में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। ये गाड़ी है अमजद साबरी की जिसको निशाना बनाया गया है। लियाकताबाद के इलाके में मौजूद थे, इस गाड़ी में सवार थे, उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद था, उनका असिस्टेंट बताया जा रहा है। इन दोनों को जख्मी होने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया और जहां पर अस्पताल जराए ने ये इस बात की तस्दीक की कि अमजद साबरी जाँ बहक हो चुके हैं जबकि इनके साथ जो मौजूद थे वो भी शदीद जख्मी हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी पर गोलियों के निशान आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये गाड़ी लियाकताबाद के इलाके में मौजूद है और इस गाड़ी में सवार थे अमजद साबरी। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोनिस सिराज से। मोनिस सिराज, बताइएगा, कंफर्मेशन कर दी गई है अमजद साबरी जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी गाड़ी भी हम देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? जी देखिए, बिल्कुल ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कव्वाल है, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी। इनकी गाड़ी को अब से कुछ देर पहले निशाना बनाया गया था। कराची का इलाका है लियाकताबाद, शरीफाबाद थाने की हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से कार पर घात लगाए मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में कार में सवार मारूफ कव्वाल अमजद फरीद साबरी जो है वो शदीद जख्मी हुए थे। इनको फौरी तौर पर जो है वो अब्बासी के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल पहुंचने से कबल अमजद साबरी जो है वो दम तोड़ गए हैं, जबकि इस वाक़े के नतीजे में एक बंदा जो है वो जख्मी भी हुआ है जिसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। अस्पताल का ये कहना है कि इस वाक़े में जख्मी होने वाले शख्स को इस वक्त तबीब इमदाद दी जा रही है। अब्बासी के अस्पताल में इस वक्त हजारों की तादाद में जो अमजद साबरी के मद्दा हैं वो इस अफसोसनाक खबर को सुनते ही जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है अफरा तफरी का समय अब्बासी के अस्पताल में अमजद साबरी की डेड बॉडी जो है इस वक्त मौजूद है और उनके लवाहिकीन ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो किसी निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए इलाज के करते। अच्छा मोनिस सिराज, ये बताइएगा कि अस्पताल जराए की जानिब से तो तस्दीक कर दी गई है अमजद साबरी के जाँ बहक होने की, उनकी फैमिली की जानिब से कुछ कंफर्मेशन सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं अस्पताल जराए की जानिब से ही जो है वो अब तक ये कंफर्म हो सकी है बात कि अमजद साबरी जो है वो अभी दुनिया में नहीं रहे और मजबूरी तौर पर अस्पताल जराए का ये कहना है। जबकि पुलिस जराए से भी हमारी बात हुई, पुलिस जराए ने भी ये कंफर्म किया है कि मजबूरी तौर पर 3 गोलियां जो है वो अमजद साबरी को लगी हैं, जिसमें 2 गोलियां उनके सर में लगी हैं जबकि 1 गोली जो है उनको टांग में लगी है। इस तरह से मजबूरी तौर पर 3 गोलियां जो है वो दहशतगर्दों ने घात लगाकर उनको निशाना बनाया। 3 गोलियां अमजद साबरी को लगी जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुई। जबकि इस वाक़े में जो शख्स जख्मी हुआ है उसको इस वक्त जो है वो तबीबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जाए वक़्वा की, तो पुलिस अफसरान जो है वो बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे हैं। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है और जो अतराफ में सीसीटीवी कैमरे नस्ब है उनसे भी जो है वो फुटेजेस हासिल की जा रही है कि ताकि मुल्जिमान की जो है वो निशानदेही हो सके, मुल्जिमान की किसी तरह शनाख्त हो सके और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुल्जिमान तक जो है वो पहुंच सके। मोनिस सिराज, एक दफा फिर इस गाड़ी के हवाले से बताइएगा कि जिस इलाके में इसको निशाना बनाया गया है, क्या कहते हैं शाहिदीन, क्या मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पुलिस जराए से जो हमारी बात हुई है उसका ये कहना है कि लियाकताबाद का इंतहाई मशहूर तरीन इलाका है। लियाकताबाद 10 नंबर के करीब शरीफाबाद थाने की हदूद में जो है वो घात लगाए मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। मारूफ कव्वाल है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है। अमजद फरीद साबरी, इनके वालिद साहब जो है वो भी एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कव्वाल थे। आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कव्वाल रफाकत अली खान जो अमजद अली साबरी के दोस्त भी रहे हैं। रफाकत अली खान साहब,
अफसोसनाक खबर है। अमजद साबरी साहब के हवाले से आज उनको टारगेट किया गया है। अपने कलाम के जरिए अमन का पैगाम देने वाली एक और आवाज को आज हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया है। क्या कहेंगे? सर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये बिल्कुल एक पाकिस्तान की सकाफत को एक बहुत बड़ा झटका है। और वो एक बहुत मशहूर कवाल थे और उनके वालिद साहब साबरी कवाल बबूल साबरी साहब, और उनका भी एक बहुत बड़ा वकार था। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अब फनकारों को भी टारगेट किया जा रहा है, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं दिल की गहराइयों से उनकी जो अहले खाना है उनके गम में हम शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जी, और जितनी जल्दी हो सके उनके घर वालों को इंसाफ मिले। रफाकत अली साहब, यकीनन सारे ही लोग इस वक्त अफसोदा भी हैं और इंसाफ का मुतालिबा भी कर रहे हैं, और आप कुछ चीज शेयर कीजिएगा, कोई उनके साथ जो आपके लम्हात गुजरे, आपने उनके साथ काम किया हो, इस हवाले से बताइएगा, बहैसियत इंसान अमजद साबरी के हवाले से। सर, वो एक बेहतरीन इंसान थे। मुझे तो ये लफ्ज कहते हुए अजीब लग रहा है कि वो बेहतरीन इंसान थे, यानी वो चले गए दुनिया से, ये कहते हुए अजीब महसूस हो रहा है। यानी जुबान जो है मेरी, तो वो मेरा साथ ही नहीं दे रही जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इतना बड़ा वाकया इस मुल्क के अंदर हो गया। और रमजानुल मुबारक में जब अल्लाह की रहमतों के लिए लोग गड़गड़ा रहे हैं, तो इस वाकये में उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी जी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके साथ मुलाकातें होती रही हैं। वो इंतहाई नेक इंसान थे, बहुत बावकार इंसान थे, और अपने खानदान का नाम लेके आगे गए। और वो अपने फन के साथ साथ दूसरे फनकारों को भी अप्रिशिएट करते थे, और वो अपने घरों में महफिल भी कराया करते थे, दूसरे आर्टिस्टों को भी बुलाया करते थे जी। अभी तो मैं खुद शौक में हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लग रहा है जी। कि पाकिस्तान की सकाफत के लिए, पाकिस्तान की ऐसे लोग जो पाकिस्तान का नाम जाके पूरी दुनिया में रोशन करते हैं और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को वो जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर वो भी इस तरह टारगेट होंगे तो पाकिस्तान का क्या इमेज रह जाएगा पूरी दुनिया में। जी। ठीक है, रफाकत अली साहब, क्या आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे इस अफसोसनाक वाकये के बाद? देखिए जी, हुकूमत तो सब चीजें जानती है, वो तो अच्छी तरह हर बात से बाइल्म है, और बाकी जो काम जिन्होंने जो कर दिया है वो तो अब वापस नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि मैं उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ, और पाकिस्तान का एक अजीम आर्टिस्ट, पाकिस्तान एक बड़ा आर्टिस्ट, ताजदार हरम उनकी फैमिली की कवाली है, जो दूसरे लोगों ने गा के नाम कमाया, बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद। तो इस तरह के लोग जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का निशान है, पाकिस्तान उनसे पहचाना जाता है, तो उनके साथ भी अगर ये होगा तो मुझे ये बताएं हम कहाँ जाएंगे। जी ठीक है, रफाकत अली खान साहब, आपकी उनकी किसी फैमिली मेंबर से बात हुई हो उनके जबा होने के बाद, उनका क्या कहना था, हमसे शेयर कीजिएगा। मुझे भी अभी ये शॉक न्यूज मिली है, क्योंकि मेरे यहाँ तो लाइट नहीं आ रही, तो somebody told me that it's happened 10-15 minutes before। तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ ये सुन के, मैं तो शॉक में हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया। और अल्लाह ताला की जात उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको जवारी रहमत में जगह दे, और अल्लाह ताला हमारे ऐसे जो बाकमाल लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, उनको अल्लाह ताला सलामत रखे और उनको और उनकी फैमिलियों को आबाद रखे। उनकी फैमिली के साथ हमारे दुख, पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों का दुख, पूरी पाकिस्तानी आवाम का दुख जो है वो एक, मैं सोचता हूं बहुत शुक्रिया। रफाकत अली खान मारूफ कव्वाल हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन वो भी दुखी हैं, अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। पूरी कौम दुखी है इस वक्त। अफसोसनाक खबर है, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जिन्होंने कव्वाली को एक नई तर्ज दी, नई धुन दी, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी मशहूर कव्वालियों में ताजदार हरम और भरदो झोली मेरी या मोहम्मद, ये वो कव्वालियां हैं जिसने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, मगर आज वो अंधी गोलियों का निशाना बने हैं। उनको टारगेट किया गया है, उनको टारगेट किलिंग के नतीजे में वो जांबाक हो चुके हैं। कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी जांबाक हो गए हैं। लियाकताबाद फ्लाईओवर के करीब अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। अमजद साबरी के चेहरे और गले पर गोलियां लगी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फायरिंग के नतीजे में अमजद साबरी का दोस्त भी जांबाक हो गया है। 2 अफराद मौजूद थे गाड़ी में। यहां आपको बताएं कि उनके साथ मौजूद उनका दोस्त भी जांबाक हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जबकि वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने वाक़े की रिपोर्ट
रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि दुनिया को अमन का पैगाम देने वाली आवाज को आज शहर कायद में खामोश करवा दिया गया है। कराची में दहशत गर्दों की फायरिंग, मारूफ कवाल अमजद साबरी जाँ भाग हो गए हैं। लियाकताबाद फ्लाई ओवर के करीब अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। अमजद साबरी के चेहरे और गले पर गोलियां लगी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फायरिंग के नतीजे में अमजद साबरी का दोस्त भी जाँ भाग हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए हैं और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जी हां, दूसरी जानिब वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने इस वाकये की रिपोर्ट तलब की है। आपको बताते चले ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसके हवाले से तहकीकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने इस वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची में दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को टारगेट किया गया है और अमजद साबरी जाँ भाग हो चुके हैं। लियाकताबाद फ्लाईओवर के करीब अमजद साबरी की गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया गया है, उन पर फायरिंग की गई है। अमजद साबरी के चेहरे और गले पर गोलियां लगी हैं जिससे वो जाँ भाग हो चुके हैं। फायरिंग के नतीजे में उनके साथ सवार अमजद साहब के दोस्त भी जाँ भाग हो चुके हैं, ये भी कंफर्मेशन की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच चुके हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी पर फायर किए गए नामालूम अफराद की जानिब से और दोनों ही अफराद जो गाड़ी में सवार थे दोनों जाँ भाग हो चुके हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि दोनों शदीद जख्मी हैं जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर कुछ ही लम्हों बाद ये खबर सामने आई कि अमजद साबरी इस दुनिया में नहीं रहे, वो जाँ भाग हो चुके हैं, इन अंधी गोलियों का निशाना बने हैं। जबकि अब ये भी खबर सामने आ रही है कि उनके साथ सवार उनके दोस्त वो भी जाँ भाग हो चुके हैं, वो भी शदीद जख्मी थे। मगर अब ये खबर सामने आई है कि उनके दोस्त भी जाँ भाग हो चुके हैं। गाड़ी में दो ही अफराद सवार थे और दोनों ही निशाना बने हैं इस टारगेट किलिंग का। अमजद साबरी की गाड़ी को आज निशाना बनाया गया है, दिन दिहाड़े उन पर फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में सवार दोनों अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें एक अमजद साबरी खुद थे और एक उनके दोस्त उनके साथ सवार थे। दोनों ही अफराद जाँ भाग हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अमजद साबरी को मुताद्दिद गोलियां लगी हैं जिससे वो जाँबर नहीं हो सके। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, गाड़ी के मनाजिर हैं। लियाकताबाद के इलाके में इस वक्त भी जाँ भाग हो गया है। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए हैं और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जबकि वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक ऐसी आवाज जो आजकल रमजान मुबारक में भी अपना कलाम पेश कर रहे थे, मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और रमजान ट्रांसमिशंस में अपना कलाम पेश करते थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मुकाबले होते थे नात ख़्वानी के मुकाबला जात में जज के फराइज़ सर अंजाम देते थे और हमेशा एक मोतबर शख्सियत के हवाले से जाने जाते थे। बहुत ही अच्छी बात करते थे, अच्छी गुफ्तगू करते थे और बहसियत इंसान बहुत अच्छे थे। कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उनके दोस्त रफाकत अली खान, वो भी एक कवाल हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। उनका कहना था कि हमें भी दिली दुख है, उनके घर वालों के इस दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। वो एक अजीम शख्सियत थी और उनका कलाम जिससे उनको शोहरत मिली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लेकिन अब ये आवाज हम में नहीं रही। जी हाँ, कलाम पढ़ने वाली एक खूबसूरत आवाज को हमेशा के लिए दहशत गर्दों की जानिब से खामोश कर दिया गया है। कव्वाली की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम उन्होंने पैदा किया और इस आवाज को, एक खूबसूरत आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की गाड़ी पर, जिसमें वो खुद भी सवार थे और उनको मुतादिद गोलियां लगी हैं। ये बताया जा रहा है कि उनको 4 गोलियां लगी हैं, चेहरे और सीने पर गोलियां लगी हैं जो उनकी मौत की वजह बनी है। कराची में दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को इस मर्तबा टारगेट किया गया है। हमने देखा कि कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें जो है वो रोज बरोज हो रही हैं, मगर आज निशाना बनाया गया है मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को। दिन दिहाड़े उन पर फायरिंग की जाती है, नामालूम अफराद आते हैं, उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके बाद तहकीकात के लिए पुलिस वहां पर पहुंचती है और अब शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, अमजद साबरी की गाड़ी है जिस पर आज फायरिंग की गई है और उन पर मुतादिद फायर किए गए हैं।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस अफसोसनाक हादसे के बाद? ये अब से कुछ देर पहले अमजद साबरी, जो गुलाम फरीद साबरी कव्वाल के बेटे थे और बहुत मशहूर शख्सियत थे, अब से कुछ देर पहले उनको इंतहाई जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मूव किया गया था, जहां वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इस वक्त बड़ी दिक्कत आमेज मनाजिर यहाँ देखने में आ रहे हैं। उनकी बॉडी को तो अब से कुछ लम्हों पहले आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लोग जो अहले इलाका थे वो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि ये वाकया कैसे पेश आ गया, और इंतहाई अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अमजद साबरी के चाहने वाले बड़ी तादाद में अब्बासी शहीद पहुंचे हैं और अब यहाँ से निकल के आगा खान अस्पताल जाना शुरू कर दिया है लोगों ने, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद उनके मद्दाओं की मौजूद है इस वक्त यहाँ पे। इसके अलावा 2 जख्मियों का, जो उनके मैनेजर और ड्राइवर थे, उनके जब हमने एमएलओ से बात करी तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया। उनका कहना था यहाँ सिर्फ अमजद साबरी को लाया गया था, जो कुछ देर बाद यहाँ इंतकाल कर गए और उनकी डेड बॉडी जो है इस वक्त आगा खान अस्पताल मूव कर दी गई है। जी मंजर रिजवी, आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा क्या उनके अहले खाना वहां पर पहुंचे, किसी से बात हुई, क्या कहना है उनका इस हवाले से? ये देखिए, अहले खाना जो है वो बॉडी के साथ आगा खान अस्पताल मूव हो गए। यहाँ पे उनके अहले खाना मौजूद नहीं है और वहाँ पे घर जो है, घर पे जो लोग मौजूद हैं वहीं पे हम जा रहे हैं, उनसे भी राब्ता करेंगे। इस वक्त ज्यादातर लोग आगा खान अस्पताल अहले खाना उनके जा चुके हैं। यहाँ पे जो अहले इलाका थे वो बड़ी तादाद में अच्छा, आपने बताया कि बड़ी तादाद में उनके मद्दा वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनसे आपकी बात हुई है, क्या तासुरात हैं उनके? जी, हजारों कतार रो रहे खातून थी जिन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया और फूट फूट के रोने लगी जब उनको ये पता चला कि अमजद साबरी का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा हमने जख्मी होने की इत्तला सुनी थी तो सामने रहते हम फौरन अब्बासी शहीद अस्पताल आए, जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगी। उनका कहना था कि इसी तरह की वारदातें हो रही हैं और कराची में अमन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जी मंजर रिजवी, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। कराची शहर में एक दफा फिर आए एक अमजद साबरी जो मारूफ नात ख्वां थे, कवाल थे, उनको निशाना बनाया गया है। शहर कायद का अमन-ओ-अमा इस वक्त खराब सूरत हाल का मंजर पेश कर रहा है। कराची शहर में जहां पर अमन-ओ-अमा की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, ये वही शहर है जहां पर मुख्तलिफ शख्सियात को निशाना बनाया गया, असातिज़ा को निशाना बनाया जाता रहा और इसके अलावा उलमा को निशाना बनाया गया और टारगेट किलिंग की गई। सिक्योरिटी इदारों के अहम ओहदेदारों को निशाना बनाया जाता रहा और आज एक और अहम शख्सियत, एक बड़ा नाम मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को निशाना बनाया गया है। उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद थे, गाड़ी में सवार थे और ये लियाकताबाद के इलाके में इनको टारगेट किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो जाँ भाग हो गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मशहूर कव्वाल शहजाद संतू। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं? अमजद साबरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे तो सुन के जी मेरे तो हवास जो है ना उड़ गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। इतने अच्छे लोग, अल्लाह की सिफ्त करने वाले, नबी की, अल्लाह की हम्द पढ़ने वाले और नबी की सिफ्त करने वाले और मौला अली मुश्किल कुशा का कसीदा पढ़ने वाले, ये इस तरह क्यों किया इन लोगों ने? मुझसे तो अभी बात भी नहीं हो रही, ये क्या किया इन्होंने? शहजाद साहब, आपके साथ उन्होंने काम किया होगा, आपने उनसे सीखा होगा कुछ, ये बताइएगा जो वक्त आपने उनके साथ गुजारा बहैसियत इंसान, आपने अमजद साबरी साहब को, यकीनन वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि वो एक बड़ा घराना है अमजद साबरी साहब का जी। गुलाम फरीद साबरी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में लेजेंड थे वो, और उनकी सीट पे अमजद साहब थे, वो भी लेजेंड थे अपने काम के। तो ये बहुत बड़े लोग हैं अपने काम के, जो कि आपने अभी मुझे बताया कि वो दुनिया में नहीं रहे जी। तो बहुत दुख के